तो आज का हमारा फर्स्ट लेसन है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। All organisms need food to perform their life process. Food comprises of different nutrients which include carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. सभी organisms को एक food की जरूरत होती है और उस food components होते हैं हमारे carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. These nutrients provide us energy to grow and repair the damaged cell. They also protect us from various diseases. क्या होता है कि जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उस न्यूट्रिएंट्स से कोई ऑर्गेनिजम्स में क्या आता है, एनर्जी प्रोवाइड होती है, मींस उसकी ग्रोथ जो होती है वो मेंटेन होती है। Living organisms, including animals and human beings, obtain their food either directly or indirectly from plants. जैसे organisms directly और indirectly plants के ऊपर depend होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है लॉयन। लॉयन डियर को खाता है, बट डियर किसको खाता है, प्लांट्स को। मीन्स वो क्या होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड्स होता है, प्लांट्स पर। How do plants obtain their food? Do they also need nutrients? उसको किसकी जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की। Plants do not obtain their food from anywhere else. They prepare it with the help of water, carbon dioxide and sunlight. They also need nutrients for better growth and protection from diseases. मीन्स उसको किसकी जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की। किस चीज के लिए, बेटर उसकी ग्रोथ होना चाहिए। In this chapter we will study about nutrition in plants. हमको आगे देखना है आगे के लेसन में कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आगे देखेंगे। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। The nutrition refers to the means by which an organism obtain its food and also the process by which nutrients in food are broken down to simpler molecules for utilization by the body. क्या होता है कि जो हमारे बॉडी की कोई भी सेल, जो कोई पार्ट है जो डैमेज हो चुका होता है, उसको रिपेयर करने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। न्यूट्रिशन के दो टाइप्स है। फर्स्ट है एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखिए, mode of nutrition in which organisms make their food themselves from the simple substance is called autotrophic. Auto means self, trophic means nourishment. मीन्स क्या होता है, जो खुद का लालन पालन करता है, इस खुद का पोषण करता है। जैसे प्लांट्स क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है, वो खुद के ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, उसको हम कहेंगे एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। And the organism in which autotrophic mode of nutrition is found are called autotrophs. और उस mode of nutrition को हम कहेंगे autotrophs. Green plants are autotrophs because they prepare their food from the simple substance like carbon dioxide, water, sunlight present in their surrounding. उस ग्रीन प्लांट्स मीन्स उसका क्या कारण है, क्या मीन्स हम लोग को देखना है कि प्रिपेयर देयर फूड, वो क्या करता है, अपना खाना खुद बना रहा है। और उस अपना खाना खुद बनाने के लिए उसको कुछ सिंपल सब्सटेंस की जरूरत है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। नेक्स्ट है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। The mode of nutrition in which organisms depend on other organisms for their food is called heterotrophic. Hetero means other, trophic means nourishment. क्या होता है कि जो बनाए हुए खाने के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म वो क्या करता है, किसी प्लांट्स के ऊपर जो बनाया हुआ खाना होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसको हम कहते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। And the living organism in which heterotrophic mode of nutrition is found are called heterotrophs. उस mode of nutrition को हम कहेंगे heterotrophs. Although most of the plants have chlorophyll and thus they can manufacture their own food, but there are some plants which do not have chlorophyll. क्या होता है कि thus they manufacture own food, जो खुद का खाना क्या बनाते हैं, but there are some plants which do not have chlorophyll, but कोई plants में chlorophyll नहीं होता है, like human and other animals. Such plants depend on the food prepared by other green plants. जैसे human है, other animals है, वो किसी ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट फूड के ऊपर। These plants use heterotrophic mode of nutrition. वैसे न्यूट्रिशन को हम कहेंगे heterotrophic nutrition, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट है autotrophic nutrition in plants, photosynthesis. All the green plants prepare their food by the process of photosynthesis. Since these processes take place in sunlight, thus it is named as photosynthesis. Photo means light, synthesis means building up. वो क्या करता है, अपनी बिल्डिंग खुद बना रहा है। जैसे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है, मीन्स किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। In green plants, photosynthesis occurs in leaves. Therefore, these are called food factories of plants. Chlorophyll present in green plants help they to perform photosynthesis. और जो क्लोरोफिल है वो किसमें प्रेजेंट होता है, ग्रीन प्लांट में।
Apart from chlorophyll, plants need carbon dioxide, water and sunlight for making their food. क्या होता है कि जो क्लोरोफिल प्लांट्स, उसको किसकी जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। किस चीज के लिए? फूड बनाने के लिए। The food they make is called glucose. Addition to glucose, plants also produce oxygen, which is used by all living organism in respiration. क्या होता है कि प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जो कि हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं किस चीज के लिए? खुद का खाना बनाने के लिए, और ऑक्सीजन क्या करते हैं? वो छोड़ते हैं। उस प्रोसेस को हम कहेंगे रेस्पिरेशन। Next is sunlight. The entire process of photosynthesis takes place in the presence of sun. During this process, the energy obtained from the sun, that is solar energy, is converted into chemical energy of food. जैसे फूड को किसकी जरूरत होती है? सनलाइट की। वैसे मीन्स सन जैसे हम लोग को एनर्जी देता है, तो सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में। नेक्स्ट है वाटर. Water is absorbed from the soil by the roots of the plants. This absorbed water is transported to the leaves by the conduction tubes called xylem present in the stem of the plant. जैसे कोई आप लोग प्लांट्स लगा रहे हो, प्लांट्स को किसकी जरूरत है? सॉइल, और सॉइल को किसकी? प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ने के लिए वाटर की जरूरत है। तो वाटर क्या करता है? जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, वो लीव्स क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं बाय द कंडक्शन ट्यूब called xylem present in the stem of the plants. और जो कंडक्शन ट्यूब्स, उसको हम कहेंगे xylem, और जो xylem कहाँ पे प्रेजेंट होता है? stem of the plants. Next है chlorophyll. The cells of green leaves and young stems of plants have a number of tiny structure called chloroplast. क्या होता है? जो ग्रीन लीव्स होते हैं, प्लांट के जो छोटे स्टेम्स होते हैं, उस टीनी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट, which contain a green pigment called chlorophyll. और उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ग्रीन पिगमेंट, उसी को हम कहेंगे क्लोरोफिल। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल मेक्स द लीव्स एंड यंग स्टेम्स लुक लाइक ग्रीन, और वही क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से वो लीव्स कैसे दिखते हैं? ग्रीन। क्लोरोफिल टैप्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट फॉर कैरिंग अप फोटोसिंथेसिस. सम प्लांट्स लाइक कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स. जैसे कैक्टस को लीव्स नहीं होते हैं, बट वो उसकी जो स्टेम्स होती है वो ग्रीन दिखती है। ग्रीन क्यों दिखती है? किसी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस। क्लोरोफिल मीन्स क्या होता है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स क्या होता है? Carbon dioxide is taken by the plants from the air surrounding them. As we have studied in previous classes that during respiration, all the living organisms exhale carbon dioxide. Plants क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और आपने इसके प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो कि हम लोग एक्सेल किसे कहते हैं? जो और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं उसको हम कहेंगे एक्सेल. This carbon dioxide is used by the plants during photosynthesis. और वही कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है प्लांट्स. Carbon dioxide enters the leaf through the tiny pores present on the underside of the leaf. और जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीफ में, मीन्स लीफ के जो लीफ होते हैं उसमें जो टीनी पोर्स होते हैं, जो छोटे पोर्स होते हैं, उसको हम कहेंगे स्टोमेटा. Each stoma is surrounded by the guard cell and several epidermal cell. The guard cell control the opening and closing of stomata. Guard cell क्या करता है? कंट्रोल करता है. जैसे आप लोगों के स्कूल में, आप स्कूल में जाते हो, गार्ड रहता है जो आपकी क्या करता है? देखभाल करता है. वैसे गार्ड सेल क्या करता है? स्टोमेटा को क्या करेगा? देखरेख करेगा. वैसे नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis is a complex process as a series of chemical reactions are involved in it. In this process, raw materials, carbon dioxide and water are converted into glucose and oxygen is released. Photosynthesis का mechanism कहता है कि हमने जो raw materials लिए हैं, raw materials कौन से हैं? Carbon dioxide and water. जो carbon dioxide and water हमने लिए हैं, उसका convert किसमें हो रहा है? Glucose and oxygen में. The glucose produced by the leaves is transported to the different parts of the plant through the special conducting tubes called phloem present in the stem. किस कहेंगे phloem हम लोग? जो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है कहाँ पे? लीव्स में. लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. और जो प्लांट्स है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में लीव्स क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है. किसको? ग्लूकोज को. उसको हम कहेंगे फ्लोएम. और फ्लोएम प्रेजेंट होता है स्टेम में. इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड इट इज स्टोर्ड इन लीव्स, स्टेम, रूट्स एंड फ्रूट. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स मींस ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्टार्च में. और वो कहाँ पे स्टोर्ड रहता है? लीव्स, स्टेम्स, रूट्स एंड फ्रूट्स में. नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस.
Photosynthesis is very important for the existence of life on our planet because of the following reasons. इसके कुछ रीजन दिए हुए हैं. तो फर्स्ट रीजन है हमारा, in this process oxygen is produced which is a life supporting gas for all the living beings. सभी living beings के लिए ऑक्सीजन क्या है? सपोर्टिंग गैस है. सेकेंड पॉइंट है, स्टार्च स्टोर्ड इन प्लांट इज यूज्ड एज द फूड बाय द लिविंग बींग्स. स्टार्च कहाँ पे स्टोर्ड रहता है? प्लांट्स में, और वही हम लोग यूज किस चीज के लिए करते हैं? फूड के लिए. थर्ड पॉइंट है, फोटोसिंथेसिस हेल्प इन मेंटेनिंग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर. और थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस रखते हैं. नेक्स्ट हमारा है फोटोसिंथेसिस इन नॉन ग्रीन लीव्स. The leaves other than green have other pigment which impart various other colors to the leaves such as red, yellow, orange, brown, etc. These leaves also contain chlorophyll, but the large amount of other pigments in these leaves mask the green color. जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है हम लोग को क्रोटॉन प्लांट्स. क्रोटॉन प्लांट्स में आप लोगों ने देखे हो कि डिफरेंट मीन्स उसके जो लीव्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के कलर दिखाई देते हैं. क्यों डिफरेंट टाइप्स के कलर दिखाई देते हैं? उसमें ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो बहुत कम होता है, और जो लीव्स ज्यादा से ज्यादा ग्रीन दिखते हैं उसमें क्लोरोफिल ज्यादा प्रेजेंट होता है.